آج میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ مجھے 1 سال پرانی باتیں پھر سے یاد آ رہی تھیں۔ اسی دن یہی وقت تھا جب بھیا کی تیسری شادی ہوئی تھی۔ ہم سب لوگ پاپ کارن گوشت کے مزے لے رہے تھے کہ بھیا کے کمرے سے چیخ کی ہلکی سی آواز سننے کو ملی تھی، اور پھر صبح جو ہوا اس نے ہم سب گھر والوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہماری نوشین بھابی جنہیں ہم اس قدر پیار سے بیاہ کر لائے تھے، وہ اپنے کمرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نوشین بھابی جوان اور خوبصورت تھی۔ ان کی اچانک موت پر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اگر ہماری رشتہ داری نہ ہوتی تو نوشین کی اماں ابا ہم لوگوں پر کیس کر دیتے، کیونکہ نوشین بھابی کے چہرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر اذیت میں رہی ہوگی۔ نوشین بھابی کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا انہیں جان سے مار دیا گیا ہو، لیکن بھیا پر کوئی الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نہ صرف رحم دل تھے بلکہ انتہائی شریف طبیعت کے مالک تھے۔ پھر کچھ عرصہ بھابی کا شوق منانے کے بعد ہم نے اپنے بھائی کے لیے ایک بار پھر لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی۔ اس بار جس گھرانے سے ہمیں لڑکی ملی تھی، یہ لوگ بہت خوبصورت تھے۔ ان کی خاندانی خوبصورتی تھی۔ میری بھابھی شازیہ کو جو بھی دیکھتا رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ شادی ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات شازیہ بھابی اس زندگی سے ناتا توڑ کر ہم سے بہت دور چلی جائیں گی۔ آخر نوشین بھابی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ تب میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ ہماری پچھلی تینوں بھابھیوں کی موت بھی ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور تھا، اگرچہ ہمیں یہ سب ابھی تک سب معلوم نہ تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ایک جیسی اموات ہونے کی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ یہ تو خیر لوگوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے ہم پر غلط الزامات نہیں لگائے، اور نہ ہی ایسے گھر میں رشتہ کون دیتا ہے۔ شازیہ کو ہم خاندان سے بیاہ کر لائے تھے۔ اس کے ماں باپ غریب تھے۔ اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیا تھا۔ ہم ان کے مشکور تھے، مگر شادی کے دن میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ شازیہ کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو سب میری باقی بھابھیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے شازیہ کے ساتھ بات چیت شروع کی تھی۔ رات کو جب ہم دلہن کو اس کے کمرے میں لے گئے تو میں اس کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ بہت ڈری سہمی ہوئی معصوم سی لڑکی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی تو وہ جواب دیتی۔ اس نے خود سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ تب میں نے کہا، آج رات میں یہیں رہ جاتی ہوں، کیونکہ ہماری پچھلی بھابھیوں کے ساتھ بھی جو ہو چکا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا تھا آپ کی پچھلی بھابھیوں کے ساتھ؟ کچھ نہیں، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال اس بارے میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہاتھ باندھے بیٹھی رہی۔ اس نے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میں رات کو اسی کے کمرے میں ٹھہر جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد مگر جب بھیا آئے تو اماں نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ بولی، میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اچھی بات نہیں، تم جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ مگر مجھے چین کہاں آ رہا تھا۔ میں اماں اور بھیا دونوں سے لڑ پڑی۔ اماں، آپ نہیں جانتی پچھلی بھابھیوں کے ساتھ کیا ہوا، انہیں بھی اکیلا چھوڑ دیں گے تو وہی سب ہوگا۔ میں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے نا اماں کہ ہمارے جاگنے سے وہ افسوسناک واقعہ ٹل جائے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اماں نے مضبوطی سے کہا۔ اماں، آپ نے پہلے بھی تو ایسے ہی کہا تھا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ میری ضد پر اماں سوچ میں پڑ گئی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ بھیا بھی ڈر رہے تھے۔ پھر بھیا نے خود ہی کہنے لگے کہ اچھا نازیہ، تم ایسا کرو، ابھی کمرے میں جا کے سو جاؤ، میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو ہم دونوں کی ضرورت پڑے۔ مجھے خود اس واقعے کی سمجھ نہیں آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہی رکو۔ بھائی کی بات سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں آج بھابھی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کمرے کی روشنی بجھا دی اور کمرے میں ایک ہلکا سا لیمپ جلا دیا۔ شازیہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے جلد ہی روسی لباس میں ہی سو گئی۔ میں اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تب اچانک میری نظر سامنے والے کمرے پر پڑی، جہاں مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔
या अल्लाह, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो इनकी जान लेने आ रहा है। मैंने दिल में सोचा। आगे खड़ा शख्स जिसका साया पड़ रहा था वो भी काले रंग के लिबास में मलबूस था और उसका कद काफ़ी ऊंचा लग रहा था। ये देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वही शख्स हमारे कमरे तक आता, मैंने चीख मारी और भैया को जगा दिया। भैया उठो, वो आ गया, वो भाभी को मारना चाहता है, मैं जुनूनी अंदाज में कहे जा रही थी। भाई भी आंखें मलता उठ खड़ा हुआ। कहाँ है वो, कौन है वो, किसकी बात कर रही हो? भैया मुझसे पूछने लगे। भैया सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। वो अभी इधर को ही आ रहा होगा, मैंने भाई से कहा। मगर हम तो निहत्थे हैं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हम अपना दिफा कर सकें, मैंने कहा। इसी अफरा तफरी में शादिया भी उठकर जा गई। वो भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भैया कुछ समझ न पा रहे थे कि इस सूरत हाल में क्या करें। अब सिवाय उस कातिल का इंतज़ार करने के और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं था। तब भाई ने अक्लमंदी ये की कि कमरे के फ़ोन से बड़े भाइयों को फ़ोन करके जगा दिया कि वहाँ के कमरे से कोई आ रहा है, हो सकता है कि वो मुसल्ला हो, इसलिए तुम बाहर आकर देखो। अगर कोई खतरा की बात ना हो तो ही हम बाहर आएंगे। बागी भाई और हमारे हिस्सेदार दौड़े दौड़े आए। सब ने ही रोशनी करके राहदारी को देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सबके सामने मैंने वादे आंखों से उसके साये को कमरे में आते हुए देखा था, मगर किसी को ना पाकर अब सारे ही मुझे मशकूक नज़रों से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा वाकई में है। मैंने देखा था। फिर सब अपने कमरों में चले गए। हमें तो क्या नींद आनी थी। रात के 3 बजे का वक्त था। मैंने जाकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, वज़ू किया और फिर फजर की नमाज के लिए इंतज़ार करने लगी। शादिया भी परेशान ही थी। इसी सारे हंगामे में उसे क्या नींद आती। उसने अपना उरूसी लिबास तब्दील किया और सफ़ेद कपड़े पहन लिए। हम सब ने इकट्ठे नमाज अदा की। नमाज के बाद मैं अपने कमरे में चली गई तो देखा अम्मा भी तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने उनको सारी बात बता दी कि मेरी बात पे वो हमेशा यकीन किया करती थी, चाहे कोई माने या न माने। अम्मा मेरी बात को सुनकर परेशान सी हो गई। बोली, बेटी, अगर तूने उस साये को देखा है तो लाजमी नहीं कि वो इंसान हो, वो कि जिन्नात या फिर कोई दूसरी मखलूक भी तो हो सकती है। अम्मा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो अम्मा की 100% दुरुस्त थी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिन्नात इंसानों की शादियाँ रुकवाने के लिए तरह तरह के हरबे करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई जिनजादी आशिक हो, मैंने दिल में सोचा, और उसी वजह से भाई की तीनों बीवियां मौत के घाट उतार दी गई हों। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। बोली, तुम्हारे भाई पर किसी चीज़ का साया है, हमें सबसे पहले इसका हल निकालना पड़ेगा। तब अम्मा ने अपनी एक मुंह बोली बहन से बात की कि उनके पास कोई वज़ाइफ वगैरह होते थे जिनकी वजह से वो काफ़ी मशहूर भी थी और अमलियात की माहिर भी जानी जाती थी। आसेब का तोड़ और हर किस्म के जादू का हल उनके पास था। अम्मा शकीला खाला के पास गई। शकीला खाला ने 4 वज़ाइफ अम्मा को पढ़ने को दिए, लेकिन उन 4 वज़ाइफ को पढ़ने के लिए रात भर जागने की ज़रूरत थी। उसके साथ साथ सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल लाजमी था। अम्मा ने भाभी को सफ़ेद कपड़े पहनने की हिदायत की और वो 4 वज़ाइफ पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। मगर मसला ये था कि अम्मी का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता था। उन्हें एहतियात की ज़रूरत थी और उनके लिए रात की नींद पूरी करना ज़रूरी थी। ऐसे में सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जम गई। बड़ी भाभी को बेवा हुए तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। हम सब उनकी इज़्ज़त करते थे। उनकी शख्सियत में इस कदर संजीदगी और वक़ार था कि कोई भी उनके सामने उफ तक ना करता था। ख़ानदान में उनकी इज़्ज़त यूँ थी जैसे किसी बड़े पेशवा की होती है। अम्मी की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने भाभी से मिन्नत की, भाभी, मुझे आप पर पूरा यकीन है, ये अमल आप भी कर सकती हैं। अगर हमारी मदद करेंगी तो भैया की दुल्हन शायद बच जाए, क्योंकि मुझे तो सच पूछिए तो अभी भी डर लग रहा है। अगर पहली रात को कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद भी तो कुछ हो सकता है। हमें ये सब होने से पहले ही सोचना चाहिए। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हामी सर हिला दिया। वो ये अमल करने के लिए आमादा हो गई, मगर अमल करने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल बात थी। खैर, भाभी पर घर के कामकाज का बोझ कम कर दिया गया ताकि वो रात को उठकर बैठकर आराम से वज़ाइफ पढ़ सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती थी जो घर का सारा काम कर जाती थी।
सो हमने दोनों भाभीयों को आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। मुझे उनका रवैया कुछ अजीब सा लगा। क्या वो परेशान थी या हमसे नाराज थी? शायद हमने कोई नामुनासिब बात कर दी, मगर हम उनका संजीदा रवैया देखकर मुझ में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे अमूमन जल्दी ही नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन ना लेने देती। मैं बार बार करवट बदलती। कभी जी चाहता कि जाकर बाहर से पानी पी आऊं या एक चक्कर जाकर सहन का लगाऊं। इसी सारी कश्मकश में रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त हो गया। मैं अपने कमरे से चुपके से निकली, दबे पांव आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से जाकर कुछ खाने की चीज़ लाना चाहती थी। मुझे अगरचे डर भी लग रहा था, मगर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। राहदारी से गुजरते हुए उस वक्त मेरी रूह कांप कर रह गई। मुझे लगा कि शाजिया भाभी और भैया के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। उसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि हाथ में कोई टोकरी नुमा चीज़ थी। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने एक कदम आगे न बढ़ाया। वो शख्स भी यूं ही बैठा रहा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं अगर यहीं चीख मारती या शोर मचाती तो वो शख्स पहले भी ज़्यादा चौकन्ना हो जाता। सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि भाभी का कमरा तो पहले ही खुला हुआ था। मैंने अंदर घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा ली और आहिस्ता से भाभी को जगाने की कोशिश करने लगी। मैंने कमरे की रोशनी नहीं जलाई कि कहीं बाहर बैठे शख्स को अंदाज़ा न हो जाए कि घर वाले जाग गए हों। उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर टटोलने लगी, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होगी। मेरी तरह उनका भी दिल घबरा रहा होगा। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फ़ोन से अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाया, जो रात को अक्सर देर तक जागता रहता था। उस वक्त भी वो पढ़ रहा था। उसने फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे सारे मसले से आगाह किया। मेरी बात सुनकर उसने मुझे यहीं रहने का कहा और ख़ुद अपने कमरे से निकल गया। 5 मिनट गुजरे होंगे कि सारी राहदारी रोशन हो गई। एक तेज़ आवाज़ के साथ मेरे छोटे भाई की आवाज़ आई, हिलना मत, जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। मैं भाई की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई अम्मा के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ मेरी बहनें भी अंदर कमरे में मौजूद थी। मैं बहुत डरी हुई थी। दरवाजे के बाहर जो शख्स मौजूद था वो यूं का त्यों ही बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सांप सूंघ लिया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब और डर गए। खुदा न खास्ता ये अचानक मेरे भैया पर हमला न कर दे, मैंने सोचा। मगर हमारी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब वो शख्स वहीं सर झुकाए बैठ गया। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर कपड़ा खींचा। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भैया ने चादर खींची, हम सब की तो जैसे ही पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई और नहीं, बड़ी भाभी बैठी थी। भाभी आप यहाँ? भैया ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? मैं अपना कोई अमल कर रही हूँ, इस सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने बड़ी टोकरी पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाह रही हो। रात की इस पर तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर तुम कौन सा अमल कर रही थी? अम्मी ने पूछा। अम्मी जान, आपको तो पता है, आपने खुद ही तो मुझे अमल करने को कहा था। हाँ, मगर वो अमल तो मुख्तलिफ था। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये अम्मी ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी ले ली और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो खुदा का शुक्र कि बचत हो गई, वरना उसमें एक अदद जहरीला नाग मौजूद था और उस नाग का एक डंग इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी था। खुदाया, ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? कोई पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अम्मी ने बहू पर बरसते हुए कहा। नहीं अम्मी जान, ये तो बस अमल के सिलसिले में रखा था। आपको मालूम तो है कि ऐसे अवामिल के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। भाभी का चेहरा लाल हो रहा था। उसकी घबराहट साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रही है। मैं नहीं मानती। तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और ये सांप इस्तेमाल नहीं होता सिवाय मौत के अमल के। अम्मा की आखिरी बात ने हम सबको चौंका कर रख दिया। तो इसका मतलब था कि बड़ी भाभी? नहीं नहीं, इसे आगे हम सोच भी नहीं सकते थे। अम्मा ने बड़ी भाभी को उस वक्त तो कुछ न कहा।
उनसे सांप लेकर छोटे भाई से कह दिया कि जाकर कहीं वीराने में छोड़ दो या किसी सपेरे को दे आओ। उसे मारने की गलती ना करना, वरना सांप की आंखों में उसके मारने वाले का अक्स रह जाता है और वह दूसरे सांप उसका बदला लेते हैं। भाई ने अम्मी की बात पर अमल किया। अगले दिन वह सांप सपेरे के पास पहुंचा दिया, मगर घर वालों पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक न थी। उसके एक हफ्ते बाद अम्मा ने अपनी तहकीक जारी रखी। मेरी एक कज़न डॉक्टर को बुलवाकर उससे इस सांप का जिक्र किया, सारी बात उसे समझाई तो वो यही कहने लगी कि आप तीनों की बहू की मौत किसी सांप के काटने से हुई है। इस बात ने हम सबको अफसरदा कर दिया था। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से जाती रही। हम सोच भी नहीं सकते थे कि छोटे भैया को पाने के लिए वो इस हद तक भी गिर सकती है। हालांकि हम सब ने उनको इज्जती मान दिया और अपने घर में एक फ़र्द की ही तरह रखा। उनके बेवा हो जाने के बाद भी किसी किस्म का फ़र्क ना किया, मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था और आप तो जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। मगर हम औरत होने के नाते उन पर यह इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने कचहरी का चक्कर नहीं लगवाना चाहते। अम्मा कहती है कि इस औरत को खुदा इसके किए की सज़ा देगा। हम इसके मामले में कुछ ना कहेंगे और अल्लाह ताला की कहर इसका इंतज़ार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए। उनको कानूनन उनके जुर्म का मज़ा चखाना चाहिए जो उन्होंने महज अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए किया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।